Hello dear students, today we will do some basic question answer in English grammar. Okay, let's we start. Class is first, subject is English grammar. Dear students, first of all write down heading is basic question answer. BASIC, basic question answer. Basic question answer. Okay dear students, first question is what is language? LANGUAGE. What is language? WHET. What is LANGUAGE. What is language? भाषा क्या है? Answer is language. LANGUAGE. Language is a system. Language is a system. ISYSTEM. Language is a system of COMMUNICATION. Communication. क्या हो जाएगा? Communication. COMMUNICATION. Language is a system of communication. भाषा जो है बेटा वो एक दूसरे से संपर्क का माध्यम है, एक दूसरे से संचार की एक प्रणाली होती है. जो लैंग्वेज होती है, लैंग्वेज दो या दो से अधिक लोगों के बीच जो आपस में जो कम्युनिकेशन होता है, एक दूसरे से संपर्क होता है, जो किसी साइन के द्वारा, किसी बातचीत के द्वारा जो कम्युनिकेशन, एक दूसरे के साथ संचार, आपस में बातचीत होती है, उसको हम लैंग्वेज कहते हैं. लैंग्वेज इज द सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन. जो भाषा है वो एक संचार की प्रणाली है. क्वेश्चन नंबर 2. How HOW, how MANY, many forms. How many forms of language? LANGUAGE. HOW, how. MANY, many. FORMS, forms. OFF, LANGUAGE. हाउ मैनी फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज. जो भाषा होती है बेटा उसके कितने रूप होते हैं? आंसर इज 3 forms. आंसर इज 3 forms. 3 forms. जो भाषा होती है बेटा वो कितनी फॉर्म्स होती है? 3 forms. रिटर्न, ओरल और इंडिकेटिव होती है. वो आपकी लिखित, मौखिक और जो आपकी सांकेतिक होती है जो भाषाएं, वो आपकी 3 होती है लैंग्वेजेस. ओरल, रिटर्न एंड इंडिकेटिव. ओके, आई रिपीट अगेन डियर स्टूडेंट्स. व्हाट इज लैंग्वेज? WHAT. व्हाट ISLANGUAGE. लैंग्वेज. व्हाट इज लैंग्वेज? भाषा क्या है? लैंग्वेज is a system of communication. LANGUAGE. Language. ISASYSTEM. System. OFF COMMUNICATION. Communication. भाषा एक संचार की प्रणाली है. Second is how many forms of language? How. HOW, how. MANY, many. FORMS, forms. OFF LANGUAGE. हाउ मैनी फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज. भाषा कितने प्रकार या भाषा के कितने रूप होते हैं? आंसर इज 3 forms. 3
FORMS, 3 forms. Okay, dear students, write down these basic question answer in your notebook, and writing should be neat and clean, and do always in cursive writing. Okay, beta. Thank you. Have a nice day.
Hello dear students, today we will do some subtractions in maths. Okay, class is first. First of all, write down beta. Heading is subtraction. 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 माइनस के सम्स आएंगे इसके अंदर सभी. ओके बेटा, मैंने ऑलरेडी पहले से ही 4 क्वेश्चंस आपके उतार रखे हैं बोर्ड पर. अब आपको ध्यान देने हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, डिजिट इज 37 एंड 1 5 15. तो बेटा जो 7 है, पहले आपको माइनस जब आता है तो उसमें कट किए जाते हैं नीचे के नंबर. तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ 7 लाइन्स 1 2 3 4 5 6 7 एंड कट 5 लाइन्स 1 2 3 4 5. Now count these lines 1 and 2. So write down 2. Okay, next is draw 3 lines 1 2 3 and cut 1 line. Cut 1 line. Okay, draw this line, count this line 1 and 2. So answer is 22. Okay, so अब इसी तरह draw 5 lines 1 2 3 4 5 and cut 2 lines 1 and 2. Count these lines 1 2 3. Write down 3. So next is draw 7 lines 1 2 3 4 5 6 7. Okay, 7. Cut 3 lines 1 2 3. Now count these lines 1 2 3 4. Write down 4. Our answer is 43. Okay, next is 8 and 4. Draw 1 2 3 4 5 6 7 8 lines. Draw 8 lines and cut 4 lines 1 2 3 4. Now count these lines 1 2 3 4. So write down 4. Okay, now draw 8 lines 1 2 3 4 5 6 7 8 and cut 4 lines 1 2 3 4. Now count these lines 1 2 3 4. So write down 4. Our answer is 44. So next is draw 2 lines and cut 1 line. Write down 1. Next, draw 5 lines 1 2 3 4 5 and cut 1 line. And count this line 1 2 3 4. So our answer is 41. So dear students, subtraction के क्वेश्चन है वो आपको सारे इसी तरह से करने हैं. आपको होमवर्क के लिए मैं डिजिट और डाल देती हूँ अभी, वो आप राइट डाउन करें और अपने होमवर्क में उसको लिखें. SW डाले बेटा. हेडिंग सेम है सब्ट्रैक्शन और डिजिट आपको दे दी जाती है 65 32. First question is 65 32. Second question is 89 and 58. Second question हो जाएगा आपका 89 and 58. Okay. Third question is 76 and 43. माइनस के साइन आपको सभी में लगाने हैं. ठीक है, 76 43 इनको आपको सब्ट्रैक्ट करना है. ओके, नेक्स्ट इज फोर्थ इज 55 and 32. 55 and 32 आपको 5 में से कट करना है, 5 ड्रॉ लाइन करनी है, 2 कट करना है, 5 ड्रॉ लाइन करनी है, 3 कट करना है. इस तरह आपको ये 4 जो मैंने सब्ट्रैक्शन दिए हैं आपको अपनी नोटबुक में उतारने हैं इनको और अपनी नोटबुक में इनको सॉल्व करके दिखाना है. ओके डियर स्टूडेंट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे. Hello dear students, today we will do some living things in science subject. Okay, class is first. Dear student, first of all write down class first. Subject is science. Subject is science. Okay dear students,
Write down lesson 1. Our chapter name is living and non-living things. Living and non-living things. Okay, dear students. Write down living things. जीवित चीजें. आज हम जो जीवित चीजें होती है उनके कुछ एग्जाम्पल आपके सामने लिखेंगे. ओके डियर स्टूडेंट्स, जब आप जहाँ रहते हो उसके अराउंडिंग में जो आप अपने लिविंग थिंग्स जो भी देखते हो, जीवित चीजें देखते हो, आज आप ज्यादातर मोस्टली उन्हीं के नाम राइट डाउन करोगे. फर्स्ट इज ट्री. TREE ट्री. TREE ट्री. बेटा जो पेड़ होते हैं उनको हम पानी भी देते हैं, उन्हें जो सूरज होता है, सन, उसकी लाइट हीट की भी जरूरत होती है. तो जो लिविंग थिंग्स होती है वो उन्हें लाइट हीट, वाटर, एयर, इनकी आवश्यकता होती है, वो नीड होती है. तो लिविंग थिंग्स में फर्स्ट हम आपको कराएंगे ट्री. TREE ट्री. फर्स्ट हो गया आपका ट्री. सेकेंड इज बर्ड्स. BIRD बर्ड. बर्ड्स. BIRDS बर्ड्स. जो पक्षी होते हैं बेटा उन सभी को वाटर, हीट, एयर, लाइट, उन सभी की आवश्यकता होती है, इसलिए ये भी लिविंग थिंग होता है. लिविंग थिंग जीवित चीजें. नेक्स्ट इज बॉय. BOY बॉय. बॉय हो गया बेटा लड़का. इसे भी खाना भी खाता है बॉय. एक छोटा बच्चा होता है, वो ग्रो करते करते एक अडल्ट बन जाता है. तो ये ग्रो करता है बॉय, और ये खाना ईटिंग भी करता है, और लाइट, हीट, वाटर, एयर, इसकी सभी की जरूरत होती है. ग्रो भी करता है, मूव भी करता है. तो दिस इज ए लिविंग थिंग. बॉय. BOY बॉय. ओके बेटा. नेक्स्ट इज काउ. COW काउ. काउ मीन्स गाय. गाय होती है वो खाना भी खाती है, सांस भी लेती है, मूविंग भी करती है, ग्रो भी करती है. तो दिस इज ए लिविंग थिंग. COW काउ. ओके बेटा. नेक्स्ट इज CAT कैट. CAT कैट. कैट हो गया, वो भी आपकी एक लिविंग थिंग हो गई. कैट एक लिविंग थिंग. नेक्स्ट इज डॉग. ये आप अपने अराउंडिंग, अपने चारों ओर आप इनको मोस्टली देखते ही हो. ये आपके अराउंडिंग में आपको दिखाई देते हैं और ये आपकी लिविंग थिंग्स हो जाएगी. तो CAT कैट, DOG डॉग. GRAXX. नेक्स्ट इज GRASS. GRASS. GRASS ग्रास. ग्रास जो घास होती है उन्हें आप देखते हो, वो पहले छोटे होते हैं, उसके बाद थोड़ा थोड़ा जब उसके अंदर वाटर डालते हैं तो धीरे धीरे बढ़ते हुए ऊपर चलते हुए घास बड़ा ग्रो करती है. तो घास भी, जो ग्रास हो गई, वो भी आपकी एक लिविंग थिंग हो जाएगी. ओके डियर स्टूडेंट. नेक्स्ट इज जो भी आपके एनिमल्स हैं वो आपके सभी लिविंग थिंग्स में आ जाएंगी. जैसे फादर, मदर, ये गर्ल, ये आपकी सारी लिविंग थिंग्स हो जाएगी. GIRL गर्ल. ये लड़की आपकी एक लिविंग थिंग, क्योंकि छोटा होता है, फिर बड़ा होता है, फिर एक एडल्ट हो जाता है, मूविंग भी करती है, ग्रो भी करती है. तो ये भी आपकी क्या हो जाएगी, लिविंग थिंग. ओके डियर स्टूडेंट्स, जो आपके अराउंडिंग में आपको देखते हो, आप जो चीजें देखते हो, आज हमने उसी के बारे में उसी के बारे में आज हमने लिविंग थिंग्स कराए हैं. I repeat again. First of all, write down lesson 1. Heading is living things. आज हमने जो भी कराए हैं आपकी लिविंग थिंग्स के कुछ एग्जाम्पल आपको कराए हैं. फर्स्ट इज ट्री. ट्री. सेकेंड इज बर्ड्स. थर्ड इज बॉय. फोर्थ इज काउ. फिफ्थ इज कैट. सिक्स्थ इज डॉग. सेवेंथ इज ग्रास. एट्थ इज गर्ल. Okay dear students, write down these living things in your notebook, and writing should be neat and clean, and beta do always in cursive writing. Okay beta, thank you. Have a nice day. Hello dear students, today we will do
some state and capitals in GK. Okay, let's we start. Class is first. First of all, write down heading is state. STATE. STATE, state. And write there capital. CAPITAL. CAPITAL, capital. स्टेट एंड कैपिटल. स्टेट हो जाएंगे बेटा राज्य और कैपिटल हो जाएंगी राजधानियां. ओके डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट इज असम. ASSAM. ASSAM, असम. असम की कैपिटल हो जाएंगी बेटा दिसपुर. DIS, दिस, PUR, पुर, दिसपुर. जो असम है उसकी कैपिटल हो जाएगी दिसपुर. ओके नेक्स्ट इज बिहार. BIHAR. BIHAR, बिहार स्टेट हो जाएगा और उसकी कैपिटल हो जाएगी बेटा पटना. PATNA, पटना. PATNA, पटना. बिहार की कैपिटल हो जाएगी बेटा पटना. बिहार स्टेट हो जाएगा और उसकी राजधानी हो जाएगी पटना. नेक्स्ट इज गोवा. GOA, गोवा. गोवा स्टेट है, उसकी कैपिटल हो जाएगी बेटा पणजी. PANAJI, पणजी. जो गोवा है, गोवा जो स्टेट है, राज्य है, उसका कैपिटल हो जाएगी, उसकी कैपिटल हो जाएगी पणजी. पणजी उसकी राजधानी हो जाएगी बेटा. PANAJI, गोवा की कैपिटल हो जाएगी पणजी. ओके नेक्स्ट इज हरियाणा. HARYANA, हरियाणा. हरियाणा की कैपिटल हो जाएगी बेटा चंडीगढ़. CHANDI, चंदी. GARH, गढ़, चंडीगढ़. जो हरियाणा हो जाएगी बेटा, हरियाणा की कैपिटल हो जाएगी चंडीगढ़. हरियाणा की कैपिटल चंडीगढ़. नेक्स्ट है बेटा आपका हिमाचल प्रदेश. HIMACHAL, हिमाचल. PRADESH, प्रदेश. हिमाचल प्रदेश. हिमाचल प्रदेश. हिमाचल प्रदेश की कैपिटल हो जाएगी बेटा शिमला. SHIMLA, शिमला. SHIMLA, शिमला. हिमाचल प्रदेश की कैपिटल हो जाएगी बेटा शिमला. आई रिपीट अगेन डियर स्टूडेंट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन हेडिंग इज स्टेट एंड कैपिटल्स. फर्स्ट इज असम. फर्स्ट हो जाएगा आपका असम. असम की कैपिटल हो जाएगी दिसपुर. असम स्पेलिंग हो जाएगी ASSAM, असम. DISPUR, दिसपुर. दिसपुर असम की कैपिटल हो जाएगी DISPUR, दिसपुर. नेक्स्ट इज बिहार. BIHAR, बिहार. बिहार की कैपिटल हो जाएगी पटना. PATNA, पटना. नेक्स्ट हो जाएगा गोवा. GOA, गोवा. गोवा की कैपिटल हो जाएगी पणजी. PANAJI, पणजी. नेक्स्ट इज HAR, हरियाणा हो जाएगा. HARYANA, हरियाणा. हरियाणा की कैपिटल हो जाएगी आपकी चंडीगढ़. CHANDI, चंडी. GARH, गढ़, चंडीगढ़. हरियाणा की कैपिटल हो जाएगी बेटा चंडीगढ़. नेक्स्ट हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश. HIMACHAL, हिमाचल. PRADESH, प्रदेश. हिमाचल प्रदेश. हिमाचल प्रदेश की कैपिटल हो जाएगी बेटा शिमला.
SHIMLA, शिमला। शिमला हो जाएगी हिमाचल प्रदेश की कैपिटल। डियर स्टूडेंट्स, राइट डाउन दी स्टेट एंड कैपिटल्स इन योर नोटबुक and writing should be neat and clean and do always in cursive writing. Okay beta, thank you, have a nice day. Hello student, good morning. I am Sangeeta ma'am, teacher of first class at MLP school, राजपुरा। तो डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे भाषा के बारे में। भाषा क्या होती है, ठीक है बेटा। तो भाषा का आप सभी को पता होगा भाषा क्या होती है बेटा। आप जो भी कुछ बोलते हैं ये सभी क्या है, भाषा है, ठीक है। आप एक दूसरे से जो भी बातें करते हैं, एक दूसरे से जो भी बोलते हैं, वो सभी क्या है, भाषा है। ओके बेटा, तो आज हम करेंगे भाषा, ठीक है। हमारा फर्स्ट प्रश्न है, भाषा किसे कहते हैं। भाषा, भाषा किसे कहते हैं, ठीक है। भाषा किसे कहते हैं, ठीक है। तो भाषा किसे कहते हैं बेटा। उत्तर है, देखिए बेटा, जैसे हमने बताया कि आप जो भी बोलते हैं वो क्या होती है, भाषा होती है, ठीक है। तो भाषा किसे कहते हैं, मन के भावों को, मन के भावों को प्रकट करने का साधन, मन के भावों को प्रकट करने करने का साधन, साधन भाषा, भाषा कहलाता, ठीक है। कहलाता है, ठीक है बेटा। तो भाषा किसे कहते हैं, मन के भावों को प्रकट करने का साधन भाषा कहलाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, भाषा के कितने रूप होते हैं, ठीक है। भाषा के कितने रूप, भाषा के कितने रूप होते हैं। तो बेटा भाषा के कितने रूप होते हैं, भाषा के कितने रूप होते हैं। तो भाषा के कितने रूप होते हैं बेटा, 3। भाषा के 3 रूप, भाषा के 3 रूप होते हैं, ठीक है। भाषा के 3 रूप होते हैं। कितने रूप होते हैं बेटा, भाषा के 3 रूप। कौन कौन से होते हैं भाषा के 3 रूप बेटा, कौन कौन से होते हैं। मौखिक भाषा, मौखिक भाषा, मौखिक भाषा नंबर पहला, मौखिक भाषा, ठीक है बेटा। नंबर सेकंड पे है लिखित भाषा, लिखित भाषा। और नंबर 3 पे है सांकेतिक भाषा, ठीक है बेटा। सांकेतिक भाषा नंबर 3 पे क्या बेटा, सांकेतिक भाषा, ठीक है बेटा। नंबर फर्स्ट पे मौखिक भाषा, सेकंड लिखित भाषा और थर्ड सांकेतिक भाषा, ठीक है बेटा। एक बार फिर से देखना, भाषा किसे कहते हैं, मन के भावों को प्रकट करने का साधन भाषा कहलाता है। ओके, भाषा के कितने रूप होते हैं। तो भाषा के 3 रूप होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा, ठीक है बेटा। आपको अपनी नोटबुक में
CW में दोनों प्रश्नों को अच्छे से साफ साफ सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखना है। HW में आपको दोनों प्रश्नों को लर्न करना है। ओके बेटा, धन्यवाद।